Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Once again, I welcome all my dear students to this audio-visual class. As all of you know that we have completed lesson number 2 and we have done all the exercises related to lesson number 2. Today we are going to start lesson number 3 and the name of the lesson is Birbal in Exile. Before we proceed further, I request every student to pause the video for a while and get your textbook and keep them in front of you. I hope आपने ऐसा बिल्कुल किया होगा. आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं. लेसन नंबर 3 पेज नंबर 24 है और इस लेसन का नाम जो है वो है बीरबल इन एग्जाइल. नाउ आप अपनी बुक सामने रखोगे और मैं आपके लिए मॉडल रीडिंग करूंगा. Birbal in exile. Once Emperor Akbar was not in a very good mood. Birbal, his wisest minister, tried to cheer him up. However, the emperor became very angry and banished Birbal from the palace. Soon afterwards, Akbar realized his mistake. He missed his favorite minister. He sent out messengers to find Birbal and bring him back to the palace. But Birbal could not be found anywhere. Emperor Akbar was sad. He needed an advisor and wanted someone to take Birbal's position. The new minister had to be as wise, as intelligent as Birbal was. So he called all the wise men of the city to his court and tested them. None were found suitable. आज इतना ही हम पढ़ेंगे. मैं इसको थोड़ा रिपीट करूंगा. इस वक्त मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा तेज स्पीड से पढ़ूंगा, आप ध्यान रखोगे. Once Emperor Akbar was not in a very good mood. Birbal, his wisest minister, tried to cheer him up. However, the emperor became very angry and banished Birbal from the palace. Soon afterwards, Akbar realized his mistake. He missed his favorite minister. He sent out messengers to find Birbal and bring him back to the palace. But Birbal could not be found anywhere. Emperor Akbar was sad. He needed an advisor and wanted someone to take Birbal's position. The new minister had to be as intelligent as Birbal was. So he called all the wise men of the city to his court and tested them. None were found suitable. अब आते हैं लेसन की तरफ. The first thing we have to do is to look at the title of the lesson. लेसन का नाम क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. It is made up of 3 words. First word is Birbal in and exile. Birbal, name of a person. एक शख्स का नाम. That means it is a noun and it's a proper noun. In preposition exile. Exile ग्रामर के लिहाज से वर्ब है. exile के जो लफ्जी माने हैं वह है जला वतनी, यानी जब एक शख्स को अपने नेटिव लैंड से यानी जहां पे वो रहता है वहां से निकाल दिया जाए. exile कि अगर हम सिनोनिम देखेंगे तो बैनिश भी इसे कहते हैं या एक्सपेल निकाल देना, जला वतन कर देना, घर से निकाल देना, मुल्क से निकाल देना, इसको हम कहते हैं एग्जाइल. इसका मतलब हमारी लेसन का जो नाम है वह है बीरबल इन एग्जाइल, यानी बीरबल को जब निकाला गया. पहली बात हमें समझना होगा हु द बीरबल वाज. मुझे उम्मीद है कि आपने इसके बारे में सुना होगा. बीरबल वाज नोन एज वन ऑफ द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ एम्परर अकबर. बादशाह अकबर जो था इसके दानिशमंद अक्लमंद बादशाहों में से सबसे वजीरों में से सबसे दाना और दानिशमंद वजीर जो थे वो बीरबल थे. और इस लेसन में भी हमें पता चलेगा कि बीरबल कौन था. नाउ अब लेसन की तरफ. Once Emperor Akbar was not in a very good mood. Once एक दफा की बात है, एक दिन की बात है. Emperor Akbar was not in a very good mood. बादशाह अकबर जो था, एम्पियर बादशाह अकबर जो था, was not in a very good mood, वो अच्छे मूड में नहीं थे, यानी उसका मूड ठीक नहीं था. बीरबल हिज वाइजेस्ट मिनिस्टर, यहां पे बीरबल की
बात हो रही है, हमें बीरबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। बीरबल, और आगे इसको लिखा है कामा के बाद हिज वाइजेस्ट मिनिस्टर। हिज इसका, किसका, यानी अकबर का। वाइजेस्ट सबसे दाना, सबसे दानिशमंद, सबसे अक्लमंद, सबसे चालाक। जब हमने वाइजेस्ट इस्तेमाल किया तो यहां पे हमने एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की, यानी इसका मतलब हुआ भी अकबर के जितने सारे भी मिनिस्टर्स हैं इनमें बीरबल सबसे ज्यादा दाना, अक्लमंद और दानिशमंद वजीर थे। बीरबल हिज वाइजेस्ट मिनिस्टर ट्राइड टू चीयर हिम अप। बीरबल जो उसका सबसे दाना, सबसे अक्लमंद, सबसे दानिशमंद वजीर थे, ट्राइड टू चीयर हिम अप, उसने कोशिश की। ट्राइड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्राई। ट्राई इज द मैन फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वी कैन से बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसकी सेकेंड फॉर्म जो है वो है ट्राइड। ट्राई कोशिश करो या कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की। बीरबल जो उसका दानिशमंद, सबसे अक्लमंद वजीर था, उसने कोशिश की टू चीयर हिम अप, उसको खुश करने की। चीयर मीन्स खुश करना, हिम अप मीन्स उसको, ये फेजल वर्ब बनता है। चीयर हिम अप मीन्स उसको खुश करने की। However, the emperor became very angry and banished Birbal from the palace. However, जबकि the emperor became very angry, बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया, अकबर को गुस्सा आ गया, and banished Birbal from the palace. अभी मैंने लिखा था exile, exile या banish दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। बैनिश मीन्स हुक्म दे देना, टू लीव द प्लेस, कि इस पैलेस, इस महल को छोड़ दो, यहां से निकाल दो। उसने हुक्म दे दिया कि बीरबल को इस महल से निकाल दिया जाए, क्योंकि अकबर वाज नॉट इन ए वेरी गुड मूड, और उसको गुस्सा जब आ गया तो उसने यह हुक्म दे दिया कि अकबर को, बीरबल को महल से निकाल दिया जाए। पैलेस मीन्स महल, जहां पे बादशाह रहता है। Soon afterwards, Akbar realized his mistake. He missed his favorite minister. Soon afterwards, थोड़ी देर के बाद, अकबर realized his mistake. अकबर को realize means एहसास हो जाना। अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि उससे पहले जब उसका मूड सही नहीं था तो वो गुस्से में था। अब जब उसका मूड ठीक हो गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। He missed his favorite minister. वो अपने फेवरेट मीन्स सबसे पसंदीदा वजीर को मिस करने लगे, उसकी याद उसे आने लगी, उससे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, उसको अपने महल से निकाल दिया। He sent out messengers to find Birbal and bring him back to the palace. He sent out. Sent is also the past form of send. Sent, उसने भेज दिए। मैसेंजर्स हम कासिद को कहते हैं। इन द अर्ली टाइम्स, जब हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने सारे जराए मौजूद नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए बादशाह लोग जो थे उन्होंने आदमियों को रखा था जिन्हें मैसेंजर्स या कासिद कहा जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह बादशाह की कोई मैसेज, कोई पैगाम पहुंचाते थे। यही मैसेंजर्स अकबर ने बेच दिए टू फाइंड बीरबल, किसको देखने के लिए, बीरबल को, एंड ब्रिंग हिम बैक टू द पैलेस, और उसने कोशिश की कि उसको वापस महल में लाया जाए। एम्परर, बट बीरबल कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर। लेकिन हुआ क्या, बीरबल कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, बीरबल को कहीं पे भी नहीं पाया गया। एम्परर अकबर वाज सैड, बादशाह अकबर जो थे was sad, वो गमगीन हो गए, दुखी हो गए। He needed an advisor and wanted someone to take Birbal's position. He needed, उसको जरूरत थी। Needed is also the past form of need. He needed an advisor, उसको जरूरत थी एक सलाहकार की। एडवाइजर, एक बादशाह के पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो उसे सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए और किस मसले के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। एडवाइजर का मतलब हुआ सलाहकार, मशीर, जो इसको, जैसे आपने आज सुना होगा गवर्नर के बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो हमारी इस यूटी जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं उसके लेने में
लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद करते हैं एंड wanted someone to take बीरबल's position। अब चूंकि जब बीरबल महल में नहीं रहा, एम्पियर अकबर को जरूरत थी एक एडवाइजर की, तो वो चाहता था कि कोई आके बीरबल की सीट ले ले, उसकी पोजीशन ले ले। द न्यू मिनिस्टर हैड टू बी एज इंटेलिजेंट एज बीरबल वाज। ये जो नया मिनिस्टर होगा उसके लिए कंडीशन ये थी, जो बीरबल की सीट लेगा उसके लिए ये कंडीशन थी कि उसका उतना ही ज़हीन होना, इंटेलिजेंट मीन ज़हीन, काबिल, दाना होना जरूरी था जितना दाना, काबिल और ज़हीन बीरबल था। So he called all the wise men of the city to his court and tested them। So इसलिए he called, उसने बुला दिया, called is also the second form of call। So he called all the wise men of the city to his court। उसने बुला दिया सभी दाना आदमियों के, इस शहर में जितने भी सारे दाना आदमी थे उसने उनको बुला दिया अपने महल में, अपने दरबार में। एंड टेस्टेड देम, और उनका इम्तिहान लिया गया कि कौन उतना चालाक है, कौन उतना दाना और दानिशमंद है, कौन उतना अक्लमंद है जो बीरबल की पोजीशन ले ले, जो बीरबल जो बादशाह का सलाहकार या एडवाइजर बन जाए। नन वायर फाउंड सूटेबल, लेकिन उनमें से कोई काबिल कार नहीं था। सूटेबल का मतलब हुआ इस काम के लिए कोई भी काबिल कार नहीं था। ये थी हमारी आज की लेसन। इसका फोटो मैं आपको सेंड कर रहा हूं। इस लेसन के पहले पेज को 24 को आपको क्या काम करना होगा, आपको इसमें जितने भी सारे भी वर्ब्स होंगे ना उनको अंडरलाइन करना होगा, उसे किसी पेज पे लिखना होगा और उनकी कंजुगेशन लिखनी होगी। कंजुगेशन मीन्स उनकी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको लिखनी होगी। मैं आपको इसके लिए गाइड भी कर दूंगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।